Hi, good morning to all of you. Two controversial issues we debate today. First is the amendment by way of a proviso to Section 50, Notification 63 2020 regarding interest liability. A highly debatable and extremely nonsensical proviso added. Number two, the burning issue of credit notes, which is eating the retailers in electronics, mobile phones, FMCG, and the organized retailing areas. A lot of people have called, discussed with me, and we in turn have discussed among our friends, what is the implication of this new amendment that has been brought in Section 50 by way of adding a proviso based on recommendations of 31st GST Council meeting way back in 2018. It deals with whether interest should be charged under Section 50 on the gross tax or the net tax liability. The law was, as was being interpreted by revenue, interest was to be charged on gross tax liability prior to this addition of this proviso by way of amendment of Section 50. A lot of cases went in high courts. High court stayed virtually all the demands raised, including Delhi High Court. In the 31st General Council meeting, GST Council meeting in 2018, this issue was debated and it was agreed upon by all the states that the interest liability has to be on the net input tax credit. In other words, if your output tax is 10 lakh, you have an ITC credit under Section 41 in your ECR of 9.5 lakh, you are supposed to pay 50,000. And if you do not pay 50,000 in cash, they were saying pay interest on 10 lakh, not on 50,000. And that was in fact an absurd kind of an interpretation of law. When I had the money in my ECR and that money belongs to me, is my input tax credit, which is right given under Section 16, and I have a right to set it off against output tax liability under Section 41, then how could you charge me interest on 10 lakhs? Well, the litigation was on. The various high courts stayed without any conditions as demands, including Delhi High Court. So the war was on. So finally, in this COVID era, government thought, okay, let's make businessmen happy and grab another headline. Now, what is this headline? Headline says, no, now this, by adding this proviso, we shall compute interest on net input tax liability, as you will have to deposit, they will have to pay this in cash. Understandably, if I don't have an ITC, I have to pay interest in cash. But here, the wording of proviso is a bit tricky. It relates to output supplies in a particular tax period. And you must include those output supplies in that tax period. My interpretation is that if for the month of July, you raise a bill of 10 lakh rupees, taxable at 10%, for example, and you do not include this in July in your 3B return, but you include this in August. Now, August you have to pay output tax. That output tax you can adjust against input tax credit, but for the delayed payment of tax, which you were supposed to pay based on July return, now you are paying in on the basis of August return. On this delayed tax of 1 lakh rupees, you will pay interest at the rate of 18% per annum in cash. Notwithstanding the fact that you may have a lot of input tax credit in the month of August. This is one illegal, possible, and perhaps the right interpretation of this particular proviso. So interest has to be paid in cash. So this proviso says, okay, effective 1st September 2020, that's the date by which it has been made operational. If there are consequences like this, you will pay input tax credit on net output tax liability
which you pay in cash, and your interest also you shall pay in cash. But it has not been given a retrospective operation. Why? We don't know. Because the interest liabilities worth tens of thousands of crores have been raised in the country for the period 1st July 17 to 31st August 2020. Now, all the cases pending in High Court, or for that matter, if any pending in Supreme Court, I don't know, those cases will have to be decided based on this interpretation of Section 50. That is, now it will be difficult for High Courts to say, unless this proviso is declared beyond the power of the government, which in my opinion is not, or it is read down to say a particular this proviso is clarificatory in nature, then if it's clarificatory, it should relate back. But in my opinion, this is also not a clarificatory. It is not an amendment in rules. It's an amendment in the substantive law under CGST Act. Therefore, all interest levied or required to be levied or to be levied based on audits, assessments, etc., prior to 1st September 2020 shall be, according to my opinion, on gross amount. Again, the litigation will start. Now, the litigation which happens now, it will be difficult it will be very difficult for the courts to let it go, because this is a law. Court have to interpret a law. So unless courts think this particular proviso amendment is beyond the scheme of the Act or beyond the scope of the powers of the government, in my view, this proviso shall be held intra vires, shall be held valid. So वो सारे लोगों ने जिन्होंने अपनी रिटर्नें टाइम पे नहीं भरी और देयरफॉर टैक्स भी टाइम पे नहीं दिया, 1 सितंबर 2020 से पहले, यारो उनके लिए प्रॉब्लम है. जितनी रिटर्नें लेट हैं, जितना आपने ग्रॉस टैक्स लेट जमा किया, जो आपका ग्रॉस टैक्स बनता था, उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा 18% के हिसाब से. दैट इज़ फॉर एग्जांपल 1 सितंबर 2020 से अगर किसी डीलर की 10 रिटर्नें लेट हैं 1 जुलाई 17 से 31 अगस्त 20 तक, और उनमें टोटल ग्रॉस टैक्स 10 लाख रुपए है और नेट इनपुट टैक्स सिर्फ 1 लाख रुपए था, इंटरेस्ट 10 लाख पे लगा है और देना होगा. अब कल को कोर्ट क्या करेंगे मुझे पता नहीं, वो तो कोर्ट्स का व्यू है, लेकिन नाउ दिस द लॉ. कोर्ट्स हैव टू इंटरप्रेट अ लॉ एंड गवर्नमेंट हैज ए पावर टू इम्पोज इंटरेस्ट. सिंस इट्स ए सब्सटेंटिव प्रोविजन, दिस प्रोविजन विल स्टैंड. जो सेकंड बहुत बड़ा इन्होंने इस अमेंडमेंट किया, ये बाय बैकडोर एंट्री, दिस अमेंडमेंट इज़ वेरी ट्रिकी एंड वेरी वेल थॉट आउट ट्रिकी अमेंडमेंट. दोस्तों, मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि द बिगेस्ट लिटिगेशन दिस कंट्री विल फेस इज बेस्ड ऑन सेक्शन 73-74, क्योंकि जो भी रेवेन्यू की अपनी गलतियां हैं, जो उनके पाप हैं, जो उन्होंने अपना काम नहीं किया, कभी ऑडिट नहीं किए, इन्फोर्समेंट नहीं की, रिटर्नें नहीं देखी, लोगों को रिफंड टाइम पे नहीं दिए, लोगों को गलत रिफंड दे दिए, अनाप शनाप क्लेम लोगों के दे दिए इनकी रिटर्नों के बेस पर. अब जब ऑडिट होंगे, इनका रेवेन्यू नहीं आ रहा, तो वो आपका ऑडिट करेंगे. और सेक्शन 73-74 में ब्लैंकेट पावर्स हैं. कोई शॉर्ट लेवी हो आपके पास, आपने कोई कहीं टैक्स कम दिया, या आपने कोई रॉन्गफुल आईटीसी क्लेम किया, या आपको कोई आपको कोई रिफंड आपने गलत क्लेम किया या गलत दे दिया गया, या आपने टैक्स पे ही नहीं किया, आपने रिटर्नें नहीं भरी, ये सारी चीज़ें 73-74 के स्कोप में आती हैं, जैसे हमने मेरे परसों के वीडियो में डिस्कस किया था. उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, आपको समझ आएगी कि इस जो इंटरेस्ट का अमेंडमेंट है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं. 73-74 की प्रोसीडिंग्स को इस इंटरेस्ट के प्रोवाइजो ने अपने आप से बाहर रखा है. दैट इज जो सिर्फ सेल्फ असेसमेंट टैक्स अकॉर्डिंग टू रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 39, विच इज 3B एज पर आई थिंक रूल 61. I may be wrong on rules, please forgive me. I think 3B is the only return that we file today. People file.
सिर्फ उसी के लिए इंटरेस्ट का प्रोविज़न अवेलेबल है कि जो नेट टैक्स पे लगेगा। 73, 74 जो भी डिमांड आपकी निकलेगी, नॉट वी स्टैंडिंग जो आपका ITC का सेट ऑफ था या नहीं, ग्रॉस अमाउंट जो उनको निकालेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। अभी तक 18% है, क्योंकि 42, 43 का इन्होंने प्रोविज़न अभी इन्वोक नहीं किए, तो 24% का जो इंटरेस्ट है, जो मेरे पिछली वीडियो में मैंने गलती से बोला था, वो अभी अवेलेबल नहीं है। इंटरेस्ट रेट 18% ही है। अब वो लिटिगेशन जो पहले था वो डिस्प्यूटेबल था कि 73, 74 में अगर मेरे कोई लेजिटिमेट क्लेम रिजेक्ट होते हैं बेस्ड ऑन एनी जजमेंट और ऑन ओपिनियंस, तो GST के जो पहले रिजीम थे वो कहते थे कि आपको इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब आपने डिमांड खड़ी की आफ्टर द अपील पीरियड। लेकिन अब इन्होंने जो प्रोवाइजो में लिखा है कि एक्सेप्ट द टैक्स डिमांड्स ओइंग टू प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 73, 74, दे हैव रीइंफोर्स्ड, दे हैव मेड देयर केस वेरी सॉलिड कि बडीज इफ 73, 74 में आप आते हो, हम आपको इंटरेस्ट जो भी रेट होगा 18 था 24 उस समय पर आपको ग्रॉस अमाउंट पे लगाएंगे और बैक डेट से फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। सो ये जो बहुत हल्ला हमारे लोगों ने भी बड़ी बड़ी स्पीचें निकाली कि बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया, ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट नहीं करते तो कोर्ट ऐसे प्रोविजन को क्वैश करते। कभी एक डीलर का अपना पैसा पड़ा है, आप उससे अब इंटरेस्ट मांग रहे हो ग्रॉस अमाउंट में। I mean, this could have been a very absurd kind of an interpretation of law, which Revenue was trying to resort. That is why most of the high courts where these cases were filed, they gave a blanket stay. So दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट का अमेंडमेंट है, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सीखना है। तो अगर 73, 74 की कोई प्रोसीडिंग आती है, आपको उसको जल्दी से जल्दी क्लोज करना है। दैट इज़ जो पहला नोटिस आपको आए, नोट शो का नोटिस, जो पहला नोटिस वहाँ से आया आपको फॉर द पर्पज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप उनके हिसाब से ये गलतियाँ लगती हैं आपकी, आप आके एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपको वो लगता है कि आपको गलती है, आप इमीडिएटली उसका टैक्स इंटरेस्ट जमा कराइए। 73, 74 का शोकाज नोटिस स्टेज में मत आने दीजिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी सीरियस हैं। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम लॉ डिस्कस करेंगे। दूसरा इशू है दिस इशू ऑफ क्रेडिट नोट्स। कल मुझे यमुनानगर से एक सीए हैं अमित जैन साहब, एक निखिल कुमार हैं हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने कुछ मेरे वीडियो देखे होंगे। उन्होंने मुझे मेरी मैसेंजर पर सवाल पूछे कि ये जो क्रेडिट नोट का इशू है, इसका क्या इशू है। तो मैंने उनको फ़ोन करने के लिए बोला। तो रात को एक अमित जैन साहब ने मेरे को कोई 9:30 बजे फ़ोन किया और बताया कि जो हरियाणा की GST अथॉरिटीज़ हैं, जो हिमाचल की GST अथॉरिटीज़ हैं, वो जितने भी रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स ने क्रेडिट नोट्स इशू किए हैं, वो उनको बोल रहे हैं आप उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स कीजिए, नहीं करेंगे हम आपको इंटरेस्ट लगाएंगे और 100% पेनल्टी लगाएंगे। तो जो रिटेलर्स हैं जिनको ऐसे क्रेडिट नोट्स मिले हैं, वो बहुत परेशान हैं। अब इसके लिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये एक लीगल इशू है और ये आने वाले दिनों में सेक्शन 15 और सेक्शन 34 का जो इंटरप्ले होगा, ये बहुत बड़ा इशू होगा और बहुत बड़ी कंपनियां बहुत पैसा भी बना सकती हैं इसमें, बाय डिफ़ॉल्ट और बाय लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बाय अनजस्टली एनरिचिंग देमसेल्व्स। ये वैट में हुआ था, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों ने ऐसे झूठे सच्चे क्रेडिट नोट बना के डिपार्टमेंटों से रिफंड लिया था करोड़ों रुपए का। आई नो 1 और 2 केसेस पर्सनली ऑन सच केसेस। अब ये स्कीम क्या है कि एक कंपनी ने आपको 10 टीवी बेचे 2 लाख रुपए के, उस पर 28% टैक्स लगाया 56,000 रुपये। आपका कोविड आ गया, आपके टीवी नहीं बिके। आप कहते हैं ये टीवी बिक सकते हैं 1.5 लाख रुपए में, कोई ग्राहक नहीं है, वरना अपने टीवी वापस ले लो। रिटेलर बोलता है, कहते हैं नहीं ओके डजंट मैटर, हम आपको 50,000 रुपये डिस्काउंट देंगे। अब जब आपने 2 लाख का माल उसको बेचा था तो उसने 56,000 रुपये अपने किताबों में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। अब जो रिटेलर मुझे बताते हैं, वो कहते हैं, कंपनी के आदमी आते हैं, वो बोलते हैं ये 50,000 रुपये आपका डिस्काउंट था, इसमें इतना GST का पोर्शन है, इतना आपका इंसेंटिव पीरियड था 3-4% का, उसका भी एडजस्ट करके जो आपका बाकी क्रेडिट नोट बनता है वो 45,000 रुपये का बनता है।
तो 45,000 रुपये का उसको एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देते हैं, विच वी कॉल अ कमर्शियल क्रेडिट नोट इन GST लैंग्वेज। हालांकि वो जो सर्कुलर है नंबर 125 वो सिर्फ सप्लायर के लिए है, रिसिपिएंट के लिए नहीं है। अब आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया था, तो अगर आपकी GST, आपका सेल प्राइस कम हुआ, सप्लाई प्राइस कम हुआ, टैक्सेबल वैल्यू कम हुई, तो आपको GST भी कम करना चाहिए लीगली। तो आपको जो डीलर को GST क्रेडिट नोट देना था, अगर आप उसको GST क्रेडिट नोट देते सेक्शन 34 में, दैट इज़ जो भी डिस्काउंट था उसके ऊपर आप GST का रिफंड देते और टोटल 50,000 रुपये बना के उसको देते, तब तो जो रेसिपिएंट है, जो रिटेलर है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना था। लेकिन वो तभी करते जब आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस किया। दैट इज़ जो सप्लायर था जिसने 2 लाख के टीवी बेचे, उसने 50,000 का क्रेडिट नोट दिया, लेट अस से फॉर कन्वीनियंस सेक कि उसके ऊपर 14,000 रुपये 28% से टैक्स था। तो वो अपनी जिस पीरियड में उसने क्रेडिट नोट इशू किया सप्लायर ने, वो अपनी टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 14,000 से कम करता और अपनी रिटर्नों में ये क्रेडिट नोट दिखाता। यही क्रेडिट नोट जब डीलर के पास रिटर्न 2A फॉर्म में आता तो उसमें इस क्रेडिट नोट का मेंशन होता। तब अगर रिटेलर रिवर्स नहीं करता तो उसका ऑफेंस था, ही सपोज टू डू इट। लेकिन जब उसको GST टैक्स क्रेडिट नोट दिया ही नहीं गया, उसको सिंपली 50,000 की जगह 35,000 रुपये दिए गए, तो रिटेलर की क्या गलती है? तो मेरी सब अथॉरिटी से अर्ज है कि इसमें रिसिपिएंट की किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है, इट इज सप्लायर। क्योंकि रिसिपिएंट तो ना डेबिट नोट इशू कर सकता है ना क्रेडिट नोट इशू कर सकता है, दोनों ही चीज़ें सप्लायर को करनी है। अगर प्राइस कम चार्ज हुआ है सेक्शन 34 में तो सप्लायर को डेबिट नोट इशू करना है, अगर उसने प्राइस ज़्यादा चार्ज किया है या डिस्काउंट देना है तब भी उसको क्रेडिट नोट देना है। अब दोस्तों, इसमें 2 तरह के कानून हैं। एक तो सेक्शन 34 है कि अगर आपने कोई टैक्सल वैल्यू या टैक्स कम लगाया है या ज़्यादा लगाया है तो आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट दे सकते हैं, या आपको कोई माल वापस गया है तो क्रेडिट नोट दे सकते हैं, या अगर आपकी सर्विस, नॉट गुड्स, अगर आपकी सर्विस में कोई डेफिशिएंसी थी तभी सप्लाई जो सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लायर है, वो क्रेडिट नोट दे सकता है। सेक्शन 34 में इन्हीं सिर्फ 3 चीज़ों पर आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। डेबिट नोट के वहाँ प्रोविज़न है और उन सबको क्रेडिट नोट इशू करने के लिए आपको टैक्स इनवॉइस के रेफरेंसेस देने हैं। और सप्लायर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तभी कम कर सकता है जब जिसको उसने क्रेडिट नोट दिया, द रिसिपिएंट मस्ट रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट टू दैट एक्सटेंट विच इज शोन ऑन द GST क्रेडिट नोट। टिल दैट इज डन, सप्लायर कैन नॉट रिड्यूस द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब जो सप्लायर, जो कंपनियां, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स इस तरह का क्रेडिट नोट इशू करते हैं कि 50,000 की जगह 35,000 का इशू करते हैं, दोस्तों वो आंसरेबल हैं। दिस इज ए वेरी अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। जो कानून है आपको कानून के हिसाब से चलना चाहिए। अब डीलर के आप 15,000 पे रख लिया आपने, किस अकाउंट पे रखे आपने? दिस इज नॉट ए कमर्शियल प्राइवेट ट्रांजैक्शन। यू आर एंटरिंग इनटू एन एरेना ऑफ jurisdiction ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। दे विल आस्क कि भी ये जो आपकी बैलेंस शीट में जो आपकी जो टोटल कंसोलिडेशन 3B रिटर्न्स का है वो तो है 100 करोड़। आपकी जो बुक्स बोलती हैं 90 करोड़, 10 करोड़ क्या है? आप क्या बोलेंगे कि 10 करोड़ का हमने डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया तो उसकी इंप्लीकेशंस हैं। तो इस तरह की जो मैनिपुलेशन इंडस्ट्री में चल रही हैं, जहां दुकानदारों को परेशानी है, कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटरों को सोचना चाहिए, उनका हक है कि GST क्रेडिट नोट इशू करें, जो भी रीज़न है। अब रीज़न क्या है कि इस इंडस्ट्री में, ऐसी ऑर्गेनाइज रिटेलिंग में बहुत लार्ज स्केल सेल्स की मैनिपुलेशन होती है। मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, मुझे पता है। आई कैन डिबेट विद एनीबॉडी इन द इंडस्ट्री व्हाट दे डू, बिकॉज आई हैव वर्कड इन द इंडस्ट्री फॉर मैनी ईयर्स। Whether it is a white good industry, consumer durables or the mobile phones, electronic, यहाँ सारी चीज़ें चलती हैं जी। जो भी रिटेलर्स को आपने डिस्काउंट देने हैं, जिसको आपने टैक्स इनवॉइस इशू किए हैं, इट इज़ ए कंडीशन प्रेसिडेंट कि यू मस्ट इशू हिम ए GST क्रेडिट नोट unless and until you cannot satisfy the conditions. For example,
सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन बी। अगर पोस्ट सेल आपको डिस्काउंट्स देने हैं, जो डिस्काउंट आपने बिल पे दिए उन पे तो नोबडी कैन क्वेश्चन, नोबडी हैज द राइट टू क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू गिव इट टू एवरीबॉडी। जो पोस्ट सेल आपने डिस्काउंट दिए उसके लिए देयर हैज टू बी ए प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिफोर द सप्लाई ऑफ गुड्स और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आपके पास ये एग्रीमेंट नहीं है तो आप अपना आउटपुट प्राइस कम नहीं कर सकते। उस केसेस में आपको फाइनेंशियल क्रेडिट नोट की कंसेप्ट उन्होंने चलाई थी। शुरू में बोला था अगर आप जैसे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देते हैं तो दिस इज द रिएम्बर्समेंट टू द रिटेलर फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हिम। एंड एक सर्कुलर आया था कि आपको टैक्स लगेगा, लेकिन बड़ा हाहाकार हुआ और गवर्नमेंट ने वो सर्कुलर निकाल लिया। लेकिन जो सर्कुलर नंबर 125 है ये सप्लायर के लिए है मेरे दोस्तों, जो ऑफिसर लोग हैं जो टैक्स लगा रहे हैं। इट इज़ नॉट फॉर रिसिपिएंट्स। इसमें रिसिपिएंट का नाम का तो वर्ड ही नहीं है। देयरफॉर अगर किसी रिटेलर को क्रेडिट नोट्स इशू किए गए हैं और उसकी बुक्स में अकाउंटेड फॉर हैं, जिसको उसने अपने P&L में क्रेडिट साइड में शायद इनकम में दिखाते हैं ये लोग अकाउंटिंग में, उनमें उनका किसी तरह का कोई गलती नहीं है। उनको इनपुट टैक्स रिवर्स नहीं करना है। इनपुट टैक्स रिवर्स करने का ऑब्लिगेशन उनके लिए तभी है जब सप्लायर जिसने क्रेडिट नोट इशू किया है वो अपना आउटपुट टैक्स रिवर्स करता है। अगर सप्लायर ने आउटपुट टैक्स रिवर्स नहीं किया है तो रिटेलर को इनपुट टैक्स रिवर्स करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मेरी एक जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनको एक सलाह है। एक तो आप अपनी एसोसिएशन बनाइए, क्योंकि जो आप छोटे रिटेलर्स हैं आप बहुत जल्दी प्रेशर में आते हैं। आप लोग जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स की अपनी एसोसिएशन है वो कंपनियों की जान खा जाते हैं, इसी तरह आप एक अपनी एसोसिएशन बनाइए। उस एसोसिएशन में अंडर लीगल एडवाइस काम कीजिए। हमारे यहाँ से बहुत लोग हैं जो आपके लिए फ्री काम करेंगे, आपको लॉ बताएंगे, हम बताते हैं आपको वीडियो के थ्रू। आपको हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी आपको डिस्काउंट्स मिलने हैं, यू इंसिस्ट इट हैज़ टू बी ऑन टैक्स एडवाइस। दिस इज़ ए हेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस। कोई नहीं पूछेगा आपको, और आप जब माल बेचेंगे तभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तो जीएसटी में लॉ नहीं है ये फिलहाल कि अगर आपका माल ने 10 रुपये का लिया और आपने 9 रुपये में बेचा तो आपको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। ये वैट में नहीं था। वैट में था कि आपको 10 रुपये का माल 10 रुपये में, जहाँ 10 रुपये 10 पैसे का बेचना है, तभी आपको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था। वो कानून में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या नहीं क्या किया, उसकी बहस आप ठीक नहीं है। लेकिन आपके रिटेलर्स हर एरिया के एसोसिएशन हो, आपकी एक बड़ी अम्ब्रेला एसोसिएशन होनी चाहिए जो इन कंपनीज के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हर स्कीम को डिस्कस करें, और जो भी आपको डिस्काउंट दिए जाते हैं वो आपके पास राइटिंग में होने चाहिए। ये जो आपको क्रेडिट नोट देते हैं और अपने बुक्स में एडजस्टमेंट करते हैं, उनके पास भी आपके पास एक कन्फर्मेशन आनी चाहिए। क्रेडिट नोट्स की कापी आपके पास होनी चाहिए, और उनको जो ये क्रेडिट नोट्स हैं ये भी रिटर्नों में दिखाने हैं। ये 2A में रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी टर्नओवर तो कहीं दिखानी पड़ेगी ना उनको। रिटर्नों में नहीं, बुक्स में दिखाएंगे। सो दोस्तों, इन 2 इशू के ऊपर अगर आपको किसी तरह की और क्लैरिफिकेशन चाहिए, मेरा नंबर वीडियो में है, आप मुझे फ़ोन करके या मेरे को मैसेज भेजें, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका आंसर करने की। थैंक यू। सो इंटरेस्ट के ऊपर इतना खुश मत होइए, कोई खास बड़ा बेनिफिट नहीं है, और जो क्रेडिट नोट का इशू बड़ा सीरियस है, और मेरी सारी अथॉरिटीज़ को अर्ज करता हूँ कि रिटेलर्स को तंग नहीं करें। और रिटेलर्स को भी बोलता हूँ, जब भी आपको ये क्रेडिट नोट दिया जाए, आप कंपनी से, आपका हक है ये मांगना, एक रिटर्न में लेटर लें, क्या आपने इस पर आउटपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया है, कम किया है, जिस महीने में आपने क्रेडिट नोट इशू किया है, आप हमें एक लेटर दें, उसके ऊपर कंफर्मेशन दें। क्योंकि अगर आपने कम किया है तो मेरे को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट कम करना है, ये कानून है। उस लेटर को आप इंसिस्ट करें, कंपनी को हर हालत में आप उससे लेटर लें, जहाँ उतनी पेमेंट रोकें आप डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी की। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं। अब जब 3-3, 4-4 साल के आपको नोटिस आएंगे, आप वकीलों के पास भागेंगे, आपको परेशानियां होंगी, लोग आपकी डिमांड निकालेंगे, आपको वकीलों में जाना होगा। एटलीस्ट इस वीडियो को सुनने के बाद आपका जब पूरा हक है कि सारे डिस्काउंट आप बिल पे लें। अगर क्रेडिट नोट इशू करने हैं, अब अगर जो आपकी स्कीम है वो स्कीम, कुछ लोगों ने बताया जी वो कुछ साइन करा कर ले जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट की कापी आपको नहीं देते। कॉन्ट्रैक्ट की कापी भी लेना आपका हक है। हर इनवाइस जो आपको आता है वो एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर कोई स्कीम चलती है,
बिफोर द गुड्स आर सप्लाई टू यू, आप उस एग्रीमेंट पर साइन करें और कॉपी अपने पास रखें। यहाँ हर बिल पर जब भी आपको कोई नया बिल सप्लाई आती है उस पर कोई स्कीम होती है, उस पर लिखवा के लें कि इस पर्टिकुलर सप्लाई पर ये स्कीम है। तब 15(3)(b) में सेक्शन में रेड भी सेक्शन 34 आपकी सप्लाई खत्म होने के बाद भी अगर आपको कोई क्रेडिट नोट आता है उसमें भी सप्लायर भी बेनिफिट ले सकता है और आपको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।